Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, after Diwali vacation I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 Unit 2 Classical Method of Analysis. So friends, so far now we have discussed about the first classical method, that is titrimetry, and today we will discuss about the second classical method of analysis, that is gravimetric analysis. Okay, so we will see what is the general introduction of gravimetry, what are their types, how to perform that experiment, and finally what is the application. Okay, so basically gravimetric analysis is the quantitative determination of analyte concentration through a process of precipitation of the analyte. Also you have to carry out the isolation of the precipitate and weighing the isolated product. Okay, so basically what is the meaning of gravimetric analysis? It is the oldest and important technique for quantitative estimation. So whenever we want to perform chemical analysis, it is very simple to perform our titrimetric method, but suppose it is not possible for us to perform titrimetric method, the second classical method means it is the old method and where there are very less apparatus are required, so that second method is called as gravimetric analysis. Okay, so here it is also type of quantitative estimation, means here quantity of the required substance or component is determined easily. So this technique involves determination of the constituent by weight. Okay, so there you have to do with the volume. Volumetric analysis involves volume of that particular solution or that constitution, but here you have to weigh the volume, you have to apply the weight method. Okay, so you have to weigh the weight and then you can finally do the calculation and find out the unknown weight of your precipitate. So since weight can be measured most accurately than any other fundamental property, gravimetric analysis is one of the most accurate analytical method available for quantitative estimations. Means whenever you want to measure the weight, it is a basic fundamental property of any substance. Okay, easily you can measure the weight. Okay, and therefore this is most accurate and widely used type of classical method of analysis. This method is little bit lengthy and tedious, long procedure you have to carry out, but still it is very cheap, low cost and easy to perform, therefore it is widely accepted. In gravimetric analysis, the constituent to be measured is converted into other constituent of known composition which is stable and can be readily purified and weighed. जो सब्सटेंस आपको दिया है उसका तो हम लोग डायरेक्टली वेट नहीं निकाल सकते. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट you have to carry out. Means you are given a kind of solution, okay, and in that solution a substance is present and you have to find out its concentration. Okay, तो हम वो solution के अंदर जितना भी substituent है तो उसका वेट तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनटू अ प्रेसिपिटेट. ओके, सो इन दैट सॉल्यूशन आप समझ लो बीकर में क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें आपको एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करना है. यू हैव टू ऐड अ केमिकल इन दैट सो दैट वो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका कंपाउंड है उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा. ओके, एंड दैट प्रेसिपिटेट यू हैव टू फिल्टर. आफ्टर फिल्ट्रेशन व्हाट विल हैपन, जितना लिक्विड है जो सॉल्वेंट है वो निकल जाएगा. ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड फिल्टर पेपर के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट. सो दैट प्रेसिपिटेट इज नाउ ऑफ नोन कंपोजिशन. वो जो प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है उसका कंपोजिशन आपको नोन है. वो नोन होने की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज इन दैट ओनली रिक्वायर कंपोनेंट इज़ नॉट देयर बट योर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज़ ऑल्सो देयर, राइट. तो आपको वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सेपरेट करना होगा या फिर उसका कंपोजिशन आपको मालूम होना होगा कि दैट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट विल रिएक्ट विथ हाउ मच अमाउंट ऑफ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. मतलब जिस सॉल्यूशन का आपको वेट निकालना है, हाँ, तो उसके कितने कंपोनेंट या कितने पार्ट्स आपको लगेंगे विथ योर
प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल फाइंड आउट द अननोन वेट ऑफ योर सैम्पल। मतलब जो सैम्पल आपका सॉल्यूशन स्टेट में था उसको पहले हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन से उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया। ओके, दिस प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, ड्राइड और फिर उसका वेट करना है। उस वेट के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट था उसने कितना पार्ट आपका सॉल्यूशन यूज़ किया है ना। तो उस कैलकुलेशन के बाद यू कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सैम्पल। इस तरीके से इजीली आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हो। So by determining the weight of that product, the amount of the required constituent can be determined. Okay, so simple example for this type of experiments are the determination of iron in given solution. मतलब आपको एक सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन मतलब क्या, कोई तो सॉल्वेंट होगा और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयन, ओके, Fe, और उस Fe का कॉन्सेंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है। तो एक तो या आप वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करो, और अगर आपको ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दैट आयन इनटू प्रेसिपिटेट। वो जो आयन है सॉल्यूशन के अंदर उसको आपको पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाना होगा। इफ़ यू मेक इट प्रेसिपिटेट या फिर सॉलिड सब्सटेंस देन ओनली यू कैन वे इट, राइट। सॉल्यूशन आप वे नहीं कर सकते, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको वे करना है तो आपका जो आयन है उस सॉल्यूशन के अंदर उसको पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेसिपिटेट। सो यू हैव टू ऐड सम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट एंड यू आर कन्वर्टिंग दैट आयन इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड। मतलब आप हाइड्रोक्साइड एजेंट ऐड करोगे और क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस। ओके, तो ये जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। फिर आप ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फिल्टर करो। फिल्टर होने के बाद जो वाटर था जिसके अंदर आपका आयन था वो निकल जाएगा एंड इन योर फिल्टर पेपर यू विल गेट ओनली फेरिक हाइड्रोक्साइड। फिर ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम लोग ड्राई करेंगे एंड कंप्लीट ड्राइंग के बाद उसको हम लोग वे करेंगे, कितना वेट आया उस हाइड्रोक्साइड का, एंड देन फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन we will find out the concentration of Fe in your given solution. So this way you have to carry out actually the volumetric analysis. Okay, so in your last sessions you might have seen this type of crucible, right, and in this crucible you take the solid component. तो FY में हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग आपको नॉन कंपोजिशन या फिर अननोन कंपोजिशन का सैंपल देते हैं, उसको आप लोग ऐसे क्रूसिबल में लेके क्या करते हो, हीट करते हो। सो आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो निकल जाता है। ओके, दैट वोलाटाइल कंपोनेंट विल गो इन द एयर एंड ओनली जो बचा हुआ है जिसका कंपोजिशन स्टेबल है दैट विल रिमेन इन दिस क्रूसिबल और हम लोग उसका वेट करते हैं। ओके, द सेकंड मेथड विल बी ऑफ दिस टाइप, दैट इज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक। तो हम लोग पहले देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे कैरी आउट करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी सम स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज़ अ वेड सैंपल इज़ डिज़ोल्व। जो भी आप लोगों को सैंपल लेना है उसको आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में या रिक्वायर्ड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। एन एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज़ एडेड टू दिस सॉल्यूशन। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये हम लोग प्रोवाइड करने वाले आपको, जो टीचर होगा दैट ही विल गिव यू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, मे बी इट इज़ निकेल, इट कैन बी आयन, तो आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप से आपको एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है। फॉर दैट गिवन सॉल्यूशन यू विल ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। आप कोई भी एक केमिकल ऐड करोगे जो सूटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होगा एंड यू हैव टू ऐड इट इन अ एक्सेस अमाउंट। The resulting precipitate is filtered, dried or ignited and weighed. जैसे ही आप गिवन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है, इट इज़ अ सुटेबल केमिकल विच विल कन्वर्ट योर सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, राइट। तो वो प्रेसिपिटेट जैसे ही बनेगा आप उस प्रेसिपिटेट को क्या करना है, फिल्टर। ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट आपको सॉल्यूशन से सेपरेट करनी है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्राई इट प्रॉपरली और इग्निटेड, हीट करना है उसको एट अ प्रॉपर टेम्परेचर जहाँ पे वो बर्न ना हो जाए, जल ना जाए, ओनली इट शुड लूज इट्स मॉइस्चर एंड इट शुड बी गेट कम्प्लीटली ड्राइड।
एंड फाइनली यू हैव टू वे दैट प्रेसिपिटेट, उसका जितना भी वज़न है वो आपको करना है. देन इन नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम द मास एंड नोन कंपोजिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल आयन कैन बी डिटरमाइन. तो जैसे ही आप ये करोगे क्या होगा, फाइनली यू विल गेट द प्रेसिपिटेट वेट, और उस वेट से कैलकुलेशन करने के बाद आपको अननोन कंपोजिशन मिल जाएगा. एंड फाइनली स्टोक्योमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब स्टोक्योमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप एक पार्ट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेते हो तो उस पार्ट के लिए कितना आपका सॉल्यूशन लगा, कितने आयन लगे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी फेरिक हाइड्रोक्साइड. ओके, सो आप हाइड्रोक्साइड एजेंट ऐड कर रहे हो तो उसके लिए कितना फेरिक लगा, कितना फेरस, कितना आयन लगा, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट the concentration of your given sample. Okay, so this way gravimetric analysis is carried out. In a simple manner, you are given a solution, in that you have to add precipitating agent, it is a kind of chemical only. Then precipitating agent add करने के बाद solution में precipitate बन जाएगा. उस प्रेसिपिटेट को आपको सिर्फ फिल्टर करना है, उसको कम्प्लीटली ड्राई करना है, उसका वेट लेना है, और फिर उस वेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लगेंगे कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ केमिकल एजेंट और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड दिस मच Fe. तो आपका कितना वेट आया है, उस वेट में आपका कितना Fe या कितना निकेल होगा. दिस वे यू कैन फाइंड आउट द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. सो नाउ सी types of gravimetric method. These are of two types mainly, precipitating method and volatilization method. Okay, so the first method is called as precipitation method. So precipitation method में क्या करते हैं, in this method the constituent is converted into a sparingly soluble precipitate. उसका नाम ही है प्रेसिपिटेशन मेथड. मतलब क्या, आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करना है, और जैसे ही आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट और स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रेसिपिटेट. स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब क्या, जो प्रेसिपिटेट फिल्टर करने के बाद हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना, तो ऐसी प्रेसिपिटेट बन जाएगी. दिस प्रेसिपिटेट इज़ फिल्टर्ड, वॉश्ड एंड इट इज़ मेड फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़. जैसे ही आप गिवन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हो यू विल गेट प्रेसिपिटेट. उसको आपको स्पेसिफिक फ़िल्टर पेपर के साथ फ़िल्टर करना है. इज़ इट सिंपल? येस, फिल्ट्रेशन हम लोगों ने कई बार किया हुआ है ना. तो ये फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, उसको आपको प्रॉपरली वॉश करना है सो दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ नोन कंपोजिशन बाय हीटिंग एंड देन वेड. जैसे ही आप ये जो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया उसको आपको हीट करना है ना, ओवन में रख के, सो दैट इट इज़ गेट ड्राइड ऑल्सो एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ नोन कंपोजिशन. नोन कंपोजिशन की ज़रूरत क्या है, अगर आपको उस प्रेसिपिटेट का कंपोजिशन पता है देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द अननोन कॉन्सेंट्रेशन, है ना. सो दैट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नोन कंपोजिशन एंड फाइनली इट इज़ वेड. तो वो जो प्रेसिपिटेट है ड्राई होने के बाद उसका हमें वेट लेना है एंड देन दिस विल गिव यू द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सैम्पल. मतलब वो जो आपको सैम्पल प्रोवाइड किया था उसमें कितना निकेल है या कितना आयन है दैट यू कैन फाइंड आउट. सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम बाय ऑक्सैलेट मेथड यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड एंड अमोनिया. तो जैसे मैंने आयन का एग्जाम्पल दिया था उसी तरह हम लोग कैल्शियम डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ गिवन सॉल्यूशन. आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कितना कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको उसको ऑक्सैलेट में कन्वर्ट करना है एंड उस सॉल्यूशन में आपको व्हाट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यू आर यूजिंग, ऑक्सैलिक एसिड एंड अमोनिया. ओके, सो आपको गिवन सॉल्यूशन के अंदर क्या डालना है, ऑक्सैलिक एसिड एंड अमोनिया, सो दैट देयर विल बी अ रिएक्शन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट. तो ये कैल्शियम ऑक्सैलेट जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे,
फ़िल्टर करेंगे बिकॉज इट इज़ अ प्रेसिपिटेट। ये कैल्शियम ऑक्सैलेट की प्रेसिपिटेट हम लोग फ़िल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे एंड देन वी विल ट्रांसफ़र इट इन अ वेड क्रूसिबल। ओके, क्रूसिबल मैंने अभी दिखाया था, वो क्रूसिबल का पहले हम लोगों को वेट कर लेना है ना, क्योंकि एक बार आप उसमें प्रेसिपिटेट डाल देते हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हाउ यू विल कैलकुलेट वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट? तो पहले क्रूसिबल का वेट नोट डाउन करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रेसिपिटेट डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका वेट अभी थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट? सो इनिशियल वेट इज समझो A एंड आफ्टर एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेट द वेट इज़ B। तो आप लोग क्या करोगे, B माइनस A, दैट विल बी वेट ऑफ योर प्रेसिपिटेट। फिर ये क्रूसिबल हमें हीट करना है ना। हीट करने के बाद क्या होगा, फ्रॉम दैट कैल्शियम ऑक्सैलेट CO2 इज़ रिलीज्ड। उसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा रिलीज हो जाएगा एंड दैट कैल्शियम ऑक्सैलेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सैलेट क्या था, प्रेसिपिटेट, लेकिन इट इज़ अनस्टेबल फॉर्म, है ना। तो जैसे आप उसको हीट करते हो उसके अंदर का CO2 रिलीज हो जाएगा एंड कैल्शियम ऑक्सैलेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ अ स्टेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इतना ऑक्सैलेट के लिए इतना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो हम लोगों को इतना वेट मिला प्रेसिपिटेट का, तो उसके अंदर कितना कैल्शियम होगा। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, यू विल इजीली डू दिस कैलकुलेशन इन लैब व्हेन वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फिलहाल आप लोग इतना ही समझो कि इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस you have to convert the given sample solution into precipitate by adding some precipitating agent, then जो precipitate बनेगा उसको हम लोगों को filter करना है, properly dry करना है and weigh करना है। okay, after weighing you have to carry out the calculation and easily you can find out the weight of unknown sample। okay, so this was the first method called as precipitation method. Second method of gravimetric analysis is called as volatilization method. So in this method what you have to do, the constituents are decomposed due to volatilization। ओके, मतलब पहले ही आपको क्या देंगे, सॉलिड कंपोनेंट देंगे, सॉलिड मिक्सचर देंगे। जैसे प्रेसिपिटेशन में आपको जो प्रोवाइडेड सैंपल था इट वाज इन अ लिक्विड फॉर्म, इट वाज इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, वी कन्वर्टेड इनटू अ प्रेसिपिटेट। लेकिन इन सेकंड मेथड वोलेटिलाइजेशन मेथड में आपको जो सैंपल देंगे दैट विल बी इटसेल्फ इन अ सॉलिड फॉर्म, लेकिन ये जो सॉलिड फॉर्म है इट इज़ स्टिल इन अनस्टेबल फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा वो जो आपको पाउडर प्रोवाइड किए उसको हम लोग क्रूसिबल में डालेंगे एंड वी विल हीट इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग उस पाउडर को या सॉलिड कंपोनेंट को हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, जितना भी अनस्टेबल फॉर्म था वो सब इवापोरेट हो जाएगा और जो स्टेबल फॉर्म है आपके प्रेसिपिटेट का वो ऑब्वियसली क्रूसिबल में बचेगा। ओके, सो आफ्टर दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द लॉस ऑफ वेट ऑफ द सैंपल। तो हम लोग कैसे करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि इतना वेट लॉस हुआ है ना, तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रूसिबल का वेट करेंगे, मानो इट इज़ A, देन वी विल ऐड पाउडर गिवन कंपाउंड जो आपको सैंपल दिया है उसकी पाउडर ऐड करेंगे, सपोज पर्टिकुलर 1 ग्राम ऐड किया, तो आपका वेट कितना हो गया अभी, A प्लस 1 ग्राम। ओके, फिर हम लोग उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, कुछ तो वोलाटाइल जो कंपोनेंट है वो उड़ जाएगा। ओके, एंड स्लोली द वेट विल डिक्रीज, क्योंकि जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो उड़ गया है ना। तो फिर से हम लोग आफ्टर 1 आवर वी विल वेट दैट क्रूसिबल। तो अभी जितना वेट डिक्रीज हो गया दैट इज़ द वेट ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। ओके, सो फ्रॉम दैट वोलाटाइल कंपोनेंट वी विल फाइंड आउट द वेट ऑफ एक्चुअल कंपोनेंट, पहले जितना प्रोवाइड किया था वो। सो दिस वे वी विल कन्वर्ट द अनस्टेबल फॉर्म इनटू स्टेबल फॉर्म एंड फाइनली वी विल वेट दिस। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। So this is nothing but very simple experiment where you are given two type of carbonate, sodium carbonate and sodium bicarbonate, जिसमें स्टेबल फॉर्म हम लोगों को कन्वर्ट करना है।
जिसमें क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट बाय लूजिंग वाटर H2O एंड CO2। तो इस तरीके से जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स है निकल जाएंगे एंड फाइनली वी विल वे द ड्राइड, और जो इतना रेसिड्यू बचा है उसका वेट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ Na2CO3, that is sodium carbonate. So this is simple type of experiment where you can find out the weight of given substance. वॉल्यूमेट्रिक में हम लोगों ने वॉल्यूम मेजर किया था and by that we find out the concentration of unknown sample. Here the simple thing you have to remember is that the component is converted into precipitate and you have to measure the weight, not volume. So what are the different other type of gravimetric analysis and how it is actually performed, that we will see in our next lecture. Okay, till that take care and thank you.